Well, today we'll be discussing about different routes of drug administration. Now onwards, we'll be starting the main content of pharmacokinetics. So I think pharmacokinetics will take some 8 to 10 lectures for completion, and similarly some 5, 7 to 10 lectures for pharmacodynamics. Actually, we are behind the speed. We are not moving at normal speed. I'll try to accelerate things. At the same time, you try to make up and you try to cover the syllabus by reading whatever books you are having. So today, one very important discussion. There are so many variety of routes of drug administration by which we administer drugs into the human body or the animal body. And we'll be discussing each and every route, their merits and demerits, in what condition we should use which route, and in emergency which route should be preferred, and so a lot of factors decide. So just moving to the main content. So let's have our presentation. So routes of drug administration. You understand what is the root of what is the meaning of route of drug administration? Well, it is the route or the way by which the drug is administered. Say, for example, if you are taking any tablet, so what is the route? You are taking it orally. So the route is oral administration. Or if you are applying any ointment over your skin, so the route is topical application or the local application. You are applying over your skin. It may be cutaneous also. So it is external application. So there are so many routes of administration, and if we see the flow diagram, we can divide the routes into two ways. First way is that of local routes or the topical routes. What do you mean by local routes? Well, if you apply these drugs by if you apply any drug by local or topical route, you are applying either over the skin or the mucosal surface. Say, for example, you are either applying as eye drop or ear drop, or you are applying as, if you are having mouth ulcers, you may apply over the buccal mucosa, mouth mucosa. So these are the, in fact, local applications. What is the purpose of local application? The drug will act locally. Wherever you are applying, its action will be only locally. It will act only to the local site of where it has been administered. There is no any significant absorption. Say, for example, if you take any injection, so the injection or the injected drug is not going to act only on the injected site. It is going to act anywhere in the body. So in case of injections are not local applications. So local applications or the topical applications or topical routes they are meant for the local action only. So their absorption will be very limited and they will be localized only. Whereas in the second part is systemic administration or the systemic routes. What do you mean by systemic routes? The very meaning of systemic route is that whenever you are applying any drug by systemic route, they are being made available in the systemic circulation. They are made available systemically. That means the drug is being absorbed from the site of administration. If the site of administration is oral, if you are taking any capsule or tablet, it will go to your stomach, it will dissolve and it will be absorbed. And after absorption, it will go to the blood, and through blood, it will move anywhere in the body. So the drug is made available in the systemic blood circulation. And from blood circulation, it is acting either on your legs or on your hand or anywhere wherever the blood is going. Blood is circulating throughout the body cells. Majority of that, all the tissues are they are having blood circulation. So a lot of systemic routes are there. First and the most important systemic route is oral route, or they are also known as enteral route. Why we are saying as enteral? Because we are taking into the enteric system. We are taking these drugs
in the enteric system. It will be moving in the intestine and all these things. So apart from this oral route, the second most important route is parenteral route. Parenteral word consists of two words, par and enteral. So so the first route, first most important systemic route is oral. Oral is also known as enteral. Enteral. And the second route is parenteral. You see, you split these two in two words. First is par and second is enteral. So they are known as parenteral routes. Now, what do you mean by parenteral routes? They are par means beyond. They are beyond enteral routes. If you are applying anything beyond oral route, beyond enteral route, they'll be called as parenteral route or parenteral routes. So what are the parenteral routes? They are basically injections. They are either subcutaneous injections or intramuscular injections or intravenous injections or intradermal injections or intraperitoneal injections, or there are some other parenteral routes also we'll discuss later on. Well, apart from these are the two kind of oral and parenteral. These are the two important kind of systemic routes. Well, apart from these two, there are some other parenteral routes also. There are other systemic routes also. So they may be sublingual route. If you are taking any pill and you are applying just below the tongue and you are keeping it. So just beneath of the tongue is highly vascular, and from there itself it will be absorbed. It will be not. It won't be going to your stomach. From your tongue, inside of the tongue, it will be absorbed. So that route will be known as sublingual route. The next route is rectal. It is very cumbersome. It is not very preferred, but in some of the cases, in some of the emergency cases, or in sometimes it is used. We'll discuss later on. Next route is cutaneous route. If you are applying any drug which is being formulated in some oily or some fatty vehicle, and the purpose, if you are applying as massage and if it is being absorbed significantly to the tune of 20, 30, 40%, in that case, that cutaneous application will not be called as a local route. This skin, applying anything over your skin is considered as a local or topical application. But when you are applying over the skin and it is being significantly absorbed, well, I would like to tell you that in local routes, the amount of or the extent of systemic absorption is not more than 10%. Just it is 5 to 10%, and majority 90 to 95% is lying over the skin or the local surface. Whereas in systemic circulation, majority, a good chunk, more than 50%, 60, 80, 90%, it is being absorbed. In case of cutaneous also, because your skin is not that much permeable to everything. It is having a lot of layers, so it will obstruct the movement. If you are applying in some vehicle which facilitates cutaneous absorption, so that way that cutaneous route will be called as a systemic route. The next route is inhalation. You are taking a lot of medicines by inhalation. So many asthmatic people they take by inhalation. Some inhalant anesthetics, they are being administered by inhalation route. So that inhalational route is also a systemic route, because from the lungs it is being absorbed, and the absorbed drug goes to the blood from lungs, from the pulmonary alveoli. And one important route is also nasal route. If you are inhalation, and what is the difference between inhalation and nasal? In inhalation, you are inhaling, and the inhaled vapors goes to your lungs or the pulmonary alveoli. Whereas in nasal route, you are restricting only to your nasal sites, and from there, from your nasal surfaces, or if it is being absorbed, in that case, these are the nasal routes. These are minor routes; they are not everyday used. We'll discuss. So, coming to these routes one by one. Before starting all these things, let's have a brief discussion. In what condition we should use which route? So basically, what are the different factors which govern the choice of route of drug administration? हमें इंट्रावेनस रूट से यूज करना है, या टैबलेट अभी खानी है, या टॉपिकली अप्लाई करना है. हम
किसी ड्रग को, एक पर्टिकुलर ड्रग है, उसे हम उसे हम ऑइंटमेंट में भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसे इंजेक्शन में भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, उसे कैप्सूल्स, टैबलेट्स, पिल्स, सारे फॉर्म में हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो हमारी कन्वीनियंस होनी चाहिए कि हम किस वे में हम यूज करना चाहते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक फैक्टर है वो है पेशेंट कन्वीनियंस। पेशेंट कंडीशन जो है और पेशेंट कन्वीनियंस जो है कि मुझे डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं लेना, टैबलेट लिख दो, अच्छा ठीक है टैबलेट। तो एक कन्वीनियंस है ना। अब हाँ, ऑब्वियसली डॉक्टर ये सोच रहा है कि टैबलेट दे रहे हैं तो हमारा जो पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो हम देखेंगे लेटर ऑन कि किस रूट से कितना एब्जॉर्प्शन होता है और क्या इश्यूज है, किस रूट का क्या मेरिट डिमेरिट। तो डिफरेंट फैक्टर्स में जो है वो एक फर्स्ट फैक्टर है, इट इज द फिजिकल और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स। अब हर एक ड्रग को हर एक रूट से हम नहीं दे सकते। से फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन्स, पेनिसिलिन्स को हम ओरली नहीं देते। जो पेनिसिलिन जी है, ओरल देने पे वो जीआई ट्रैक्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाता है गैस्ट्रिक एसिड में। तो हमें उस ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना होगा कि वो एसिड अनस्टेबल है, एसिड में वो स्टेबल नहीं है, तो हम उसको ओरल रूट में नहीं दे सकते, हमें उसे इंजेक्शन में फॉर्मुलेट करना होगा। और जितने भी पेनिसिलिन के इंजेक्शन से आप देखते हो कि वो पाउडर्स में आता है और साथ में उसमें एम्पुल में डिस्टिल वाटर होता है, और जस्ट बिफोर इंजेक्शन दोनों को ब्रेक करके डिसॉल्व करते हैं और फिर आपको शेक करके कंपाउंडर इंजेक्शन लगाता होगा, क्योंकि वो एक्वस सॉल्यूशन में भी अनस्टेबल है। अगर 5-6 घंटा फिर छोड़ दिया डिसॉल्व करने के बाद, या डिसॉल्व किया बचा हुआ कल लगाए, तो बिल्कुल 100% डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो we have to take care of the physical and chemical properties of drugs. What are the physical properties? जैसे वो ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड है या गैस है। जैसे कोई ड्रग है वो गैसेस फॉर्म में, जैसे एनेस्थेटिक्स है, तो उनका इंजेक्शन तो लग नहीं सकता। तो अब ये सारे क्या उसके डोजेज फॉर्म्स हैं, लिक्विड है तो उसको हम ड्रेंच कर सकते हैं या किस फॉर्म में कर सकते हैं, प्लस उस ड्रग की सॉल्युबिलिटी कैसी है, वाटर में सॉल्युबल है कि ऑर्गेनिक एसिड में सॉल्युबिलिटी है, लाइक दैट। उसकी स्टेबिलिटी क्या है, जैसे अभी आपको बताया कि एक्वस पेनिसिलिन जो है वो एक्वस सॉल्यूशंस में बहुत स्टेबल नहीं है, उसका पीएच कितना है, वो इरिटेंट है या नहीं, पेनफुल है या नहीं। तो ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा डिसाइड करने के पहले कि मोस्ट प्रेफर्ड रूट उस ड्रग के लिए क्या हम डिजाइन करें। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन, हमें वो अगर आंख में इरिटेशन है तो हम आई ड्रॉप देना चाहते हैं, तो आई ड्रॉप जो हम अप्लाई करेंगे वो आई में ही होगा, लोकलाइज्ड एक्शन करेगा, उसका सिस्टमिक अब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो हमारा साइट ऑफ डिजायर्ड एक्शन सिर्फ लोकलाइज्ड है या सिस्टमिक एक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके स्टमक में अगर कुछ प्रॉब्लम है, आपके लीवर में प्रॉब्लम है, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, वहां डायरेक्टली लोकल एप्लीकेशन तो हम नहीं कर सकते। वी हैव टू सेंड द ड्रग बाय सिस्टमिक रूट, हम ब्लड के थ्रू ही हमें भेजना होगा। तो उस कंडीशन में हमें जनरलाइज्ड या सिस्टमिक रूट प्रेफर करना होगा। अदरवाइज जो लोकल है, अगर कहीं पे चोट लग गया हो, मोच लग गया हो, एक्सटर्नल एप्लीकेशन हो, हम वहां पे लोकलाइज्ड एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं या जो म्यूकस सर्फेस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब हमें चाहिए कोई ऐसा ड्रग जो अभी चोट लगी है, इमरजेंसी में काफी ब्लीडिंग हो रही है और फ्रैक्चर हो गया और उसको इमीडिएटली इमरजेंसी में एडमिट करना है। आप कहेंगे कि बेटा ये टैबलेट खा ले, तो टैबलेट एब्जॉर्ब होने में 1 घंटा लगेगा, फिर उसका एक्शन में टाइम लगेगा, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन होगा, तो उसको इमीडिएटली इंट्रावेनस रूट से ड्रग देंगे। तो क्या हमें इमरजेंसी है, क्या हमारे पास कितना टाइम है, वो सारे फैक्टर्स का हम ध्यान में रख करके रूट को प्रेफर करें। फिर अगर हम ओरल रूट से दे रहे हैं ड्रग को, तो हमें ध्यान में देना होगा कि हमारे जीआई ट्रैक्ट में, हमारे स्टमक में जो एसिड्स हैं, उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एसिडिक पीएच में वो ड्रग स्टेबल है या नहीं है। अगर स्टेबल नहीं है तो पहले ओरल रूट रिजेक्ट हो जाएगा। तो या फिर वहां से एक होता है फर्स्ट पास इफेक्ट। व्हाट इज दिस फर्स्ट पास इफेक्ट? Is anybody having any idea what is this first pass effect? As the name indicates, it is the first pass. Whenever you take any drug, either by oral route, if you take any drug, any tablet by oral route, what will happen? The tablet will go to the stomach and it will dissolve in the water or the aqueous phase of the stomach, and after dissolution it will be absorbed.
So when you are taking drug, you are having that drug for some time in your mouth. What we're discussing, there are so many variety of factors which decide the route of administration, which route should be preferred. Well, if we are having emergency, we should go for intravenous route, or that route by which the drug is rapidly absorbed, so that onset of action. If I am having a lot of pain, मेरी पैर फ्रैक्चर हो गई, तो डॉक्टर बोलेगा ये टैबलेट खा लो एनाल्जेसिक का, तो 2 घंटे बाद पेन डाउन होगा। 2 घंटे तो प्रॉब्लम हो गया ना, एक इंजेक्शन दिया या आईवी दिया, 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद मेरा पेन नम हो गया। तो क्या इमरजेंसी है? इमरजेंसी है तो हमें वैसे रूट्स प्रेफर करने होंगे। फिर अगर कोई वैसा ड्रग है जिसमें एक्यूरेसी ऑफ डोज इज वेरी मच रिक्वायर्ड है, 1-2 टैबलेट तोड़ के खा लिया, 2 वैसे नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी नहीं ज्यादा ये कर सकते हैं, तो इंट्रावेनस रूट या फिर जो पैरेंटल रूट्स हैं वहां हम डोजेस का एक्यूरेट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर 3 ml 3.5 ml इंजेक्ट करना है तो उतना ही इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वो कैसा कंडीशन है पेशेंट का, अगर बार बार वोमिशन कर रहा है, उसको एंटीमाइटिक टैबलेट लिखोगे, काम नहीं करेगा, फिर वो भी उल्टी कर देगा। तो यू हैव टू, ये सारे कंडीशंस को आपको सोच करके अप्लाई करना है कि कौन सा रूट प्रेफर करें। नाउ कमिंग one by one, फर्स्ट लेट्स सी व्हाट आर द लोकल रूट्स। सो लोकल रूट्स का क्या एप्लीकेशन है? दे आर, उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत कम होता है। सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन कहने का मतलब ब्लड में जो अगर स्किन पे लगा दिया या फिर कोई टॉपिकली, अगर वो टॉपिकल या लोकल रूट है तो उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन मतलब यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाने का 4-5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो लोकल या टॉपिकल रूट नहीं कहलाएगा। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज क्यूटेनियस, वो सिस्टमिक रूट। फिर सिस्टमिक, अब अगर सिस्टमिक इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो कोई सिस्टमिक साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। इसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल बहुत पहले टाइफाइड का चॉइस ऑफ ड्रग होता था, लेकिन क्लोरमफेनिकॉल का एक बहुत ही बुरा टॉक्सिटी है, एप्लास्टिक एनीमिया इंड्यूस करता है। क्लोरमफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो वैरायटी ऑफ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट काम करता है, और टाइफाइड और इवन उतना ही नहीं, कुछ ग्राम निगेटिव। टाइफाइड के लिए एक समय काफी अच्छा काम, बच्चों में टाइफाइड फीवर के लिए ट्रीटमेंट में यूज होता था, लेकिन लोग जब यूज करने लगे तो देखे टाइफाइड से ठीक हो गया, ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया। ये प्लास्टिक एनीमिया कहने का मतलब उसके बोन मैरो में कोई एनोमली आ गई और नॉर्मल सेल्स फॉर्म नहीं होने लगे। तो इस वजह से इसका सिस्टमिक एडमिनिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया कि नहीं, इसको सिस्टमिक रूट से इधर टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल किसी तरीके से नहीं ले सकते। और ये प्लास्टिक एनीमिया मतलब डोज इंडिपेंडेंट था, अगर किसी को एक इंजेक्शन एक डोज भी लग जाए तो उसको भी हो सकता था, ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन खाया तब जाकर होगा। इस वजह से इस पर्टिकुलर ड्रग को सिस्टमिक रूट से यूज नहीं करते हैं, बट इट वाज अ वंडरफुल ड्रग। माइक्रोब्स के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी काफी अच्छी थी। तो आज भी आप देखोगे कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो गांव में जो गवर्नमेंट सप्लाई छोटे छोटे पिल्स टाइप के आते हैं, व्हाइट व्हाइट ऑइंटमेंट फिल किया हुआ रहता है, उसको कट करके लगाते हैं। तो वो क्लोरमफेनिकॉल या उसको क्लोरोमाइसिटीन भी बोलते हैं, तो क्लोरमफेनिकॉल का टॉपिकल एप्लीकेशन है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑइंटमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसका सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये टॉपिकल एप्लीकेशन का, क्योंकि इसमें कोई सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है तो सिस्टमिक साइड इफेक्ट नहीं होगा। वो अगर ब्लड में अवेलेबल होगा तभी जाके वो प्लास्टिक एनीमिया का साइड इफेक्ट होगा। तो फिर एक और इसका फायदा है कि हाई कॉन्सेंट्रेशंस आर अटेन्ड एट डिजायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द बॉडी। आप सोचो कि आपके पैर में चोट लग गई और पेन किलर टैबलेट आप खा रहे हो, तो वो टैबलेट कहाँ जा रहा है? स्टोमक में। स्टोमक से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में, और ब्लड से पूरे बॉडी में जा रहा है, सिर्फ पैर में नहीं जा रहा है, आपके सर में भी जा रहा है, हाथ में भी जा रहा है, लीवर, किडनी, सब जगह जा रहा है वो पेन किलर ड्रग। तो ये जो अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट है ना, वो बड़ा ही मतलब टारगेटेड नहीं है कि जहां है, अगर जहां पे प्रॉब्लम है सिर्फ वहीं पे जाए। सिस्टमिक रूट का एक साइड इफेक्ट या प्रॉब्लम क्या है कि होल ऑफ द सिस्टम में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसे अगर हॉस्टल नंबर गर्ल्स हॉस्टल में कुछ प्रॉब्लम है, नल की खराबी है, और प्लम्बर भेजे तो पूरा कैंपस के सारे नल चेक करने लगे, उसको पता नहीं हो या फिर हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं हो।
तो इस टाइप का प्रॉब्लम है। सिस्टमिक में ये इशू है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं जाएगा कि सिर्फ लिवर में प्रॉब्लम है तो लिवर पे ही जाए, या स्किन में है तो सिर्फ स्किन में जाए, दूसरे जगह ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ब्लड का सर्कुलेशन ब्लड के थ्रू मूव कर रहा है, तो जहां जहां ब्लड होगा सब जगह जाएगा। तो लोकल रूट का एक एडवांटेज है कि हम लोकली अप्लाई करना चाहते हैं, अगर स्किन पे अप्लाई करना चाहते हैं तो स्किन पे हम जेल अप्लाई करते हैं तो वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग यहाँ अवेलेबल हो गया फॉर लोकलाइज्ड एक्शन, और ताकि और बाकी रेस्ट ऑफ द बॉडी बच गया, एक्सक्लूड हो गया उससे। जहां जहां ड्रग जाएगा वहां एक्ट करेगा, और वहां वहां उसकी साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी भी होगी। तो लोकल रूट्स के कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं कि इसका सिस्टमिक एक्शन नहीं हो सकता। अब देखिए कौन कौन से लोकल रूट्स हैं। लोकल रूट्स को टॉपिकल रूट्स भी बोलते हैं। बेसिकली हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन्स के थ्रू हम यूज करते हैं। स्किन पे हम बहुत सारे डोजेस फॉर्म्स हैं, आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताया जाएगा डोजेस फॉर्म्स कितने टाइप के हैं, कौन कौन से हैं। जैसे ऑइंटमेंट्स हैं, मलहम बोलते हैं, क्रीम है, लोशन है, पेस्ट है, पाउडर है, ड्रेसिंग्स है। इन सब में एग्जैक्टली क्या डिफरेंसेस हैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में डिटेल में बताया जाएगा। इनके डेफिनेशंस इस सेमेस्टर यूनिट 1 के प्रैक्टिकल्स में आपको बताए जाएंगे। फिर बहुत सारे स्प्रेज हैं, आपने यूज करा होगा। तो ये सारे के सारे जो है वो टॉपिकल रूट्स हैं जो स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं, और सबके थ्रू एब्जॉर्प्शन जो है बहुत इनसिग्निफिकेंट है, मिनिमल है, 5% से ज्यादा नहीं होना है। फिर इसके अलावा हम बहुत सारे म्यूकस सरफेसेस पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि माउथ पे हम अप्लाई कर सकते हैं, गार्गल करते हैं, फायरिंग्स आदि वगैरह को ट्रीट करते हैं। जैसे पेंट है, माउथ वॉश है, गार्गल्स है, तो माउथ एंड फायरिंग्स के म्यूकोसा को ट्रीट करता है। ईयर आई ईयर नोज पे भी हम आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, नोज ड्रॉप यूज करते हैं। तो ड्रॉप्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, नेजल स्प्रे यूज कर सकते हैं। तो वो सारे भी टॉपिकल रूट्स होंगे। फिर जीआई ट्रैक्ट में भी हम कुछ खा सकते हैं जो अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जीआई ट्रैक्ट तक ही रह जाता है, तो हम उसको, और स्टूल से पास आउट हो जाता है, तो वो सिस्टमिक रूट नहीं होगा। अगर जीआई ट्रैक्ट स्टमक या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुआ सिग्निफिकेंटली, तब वो सिस्टमिक होगा। सिस्टम में पहुंचेगा तब सिस्टमिक होगा। अगर वहां लोकलाइज्ड रहा, जैसे जीआई ट्रैक्ट में कोई इंफेक्शन है तो वहीं पे जाके क्लीन किया और उसके बाद वॉश आउट हो गया, तो उसको हम लोकल बोलेंगे, वो लोकल रूट होगा। जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सैक्राल्फेट है, नियोमाइसिन आदि वगैरह का अगर एप्लीकेशन करें तो वो। फिर ब्रोंकाई लंग्स में भी हो सकता है, अगर हम ब्रोंकाई लंग्स में इनहेलेशंस या एरोसोल के रूप में ले, जो लोकली सिर्फ ब्रोंकाई लंग्स तक काम करे, एब्जॉर्ब नहीं हो। जैसे एक है क्रोमोलिन सोडियम, ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। मास्ट सेल्स हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिस्टामिन से इन्फ्लेमेशन इंड्यूस होता है और बहुत सारे एलर्जिक कंडीशंस हैं। तो जो इनहेलर्स लेते हैं, जो एस्मेटिक पेशेंट्स होते हैं, उसमें बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। एक सोडियम क्रोमोलिन सोडियम भी होता है, जो आपको इमीडिएटली जो है वो थोड़ा सा वैसोडाइलेटेशन, लोकल वैसोडाइलेटेशन से रिलीव करेगा, तो वो भी लोकल होगा। यूरेथ्रल हम भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर किसी को कैथेटर पास करना है, उसको पेशेंट को अगर यूरिनेशन में प्रॉब्लम है या हम चाहते हैं उसको कैथेटर, तो कैथेटर आप कैसे लगाओगे, काफी पेनफुल है, फिर वो कैथेटर पास करेगा। तो हम कुछ ड्रग को लोकल जो यूरेथ्रल पैसेज में हम पास करते हैं, जैसे कुछ लोकल एनेस्थेटिक्स है, लीरोकेन, तो वो सिर्फ यूरेथ्रल पैसेज पे ही काम करेगा, वहां पे डिसेंसिटाइज करेगा ताकि आप इजीली आप कैथेटर को पास कर सकें, तो वो भी लोकल होगा। अकॉर्डिंगली वेजाइनल रूट्स भी हैं, बहुत सारे जो सपोजिटरीज हैं, सपोजिटरी बोलते हैं अगर कोई एक बोलस ड्रग का है जो हम एक पर्टिकुलर बॉडी कैविटी में हम इंसर्ट करते हैं, और तो उस ड्रग प्रिपरेशन को हम सपोजिटरी बोलते हैं, और वो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होके एब्जॉर्ब होगा वहां पे, और एब्जॉर्प्शन बहुत नॉमिनल ही होगा, 5-10%, जो लोकलाइज्ड एक्शन हो। तो वैसे ड्रग प्रिपरेशन को सपोजिटरी बोलते हैं। और वेजाइनल सपोजिटरी के लिए एक और वर्ड है, दे आर आल्सो नोन एज पेसरीज। ये सारे टर्मिनोलॉजीज आपको प्रैक्टिकल क्लास में बताए जाएंगे। फिर एनल रूट भी है, एनल सपोजिटरीज भी हैं, एनल ऑइंटमेंट्स भी है, अगर किसी को वैसा इश्यू है तो वहां यूज कर सकते हैं। Coming back to systemic routes, what is the purpose of systemic routes? They are intended to be absorbed into blood and distributed all over the body through systemic circulation. और कौन कौन से सिस्टमिक रूट्स हैं? कमिंग फर्स्ट टू द ओरल और द एंट्रल रूट, इट इज द ओल्डेस्ट, मोस्ट प्रेफर्ड एंड कॉमनेस्ट मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हर कोई चाहता है कि हमको
ओरल टैबलेट से हमको एक सुबह एक शाम इंजेक्शन लेना कोई नहीं चाहता और आलतू फालतू एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता। एंड इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट रूट, मोस्ट कन्वीनियंट है, किसी आउटसाइड डॉक्टर कंपाउंडर की हेल्प की जरूरत नहीं लेने के लिए। और जो ओरल रूट से जो सॉलिड डोसेज फॉर्म्स हम ले सकते हैं, जैसे पाउडर्स ले सकते हैं, टैबलेट्स, बोलसेस, तो लार्ज साइज टैबलेट्स उनको हम बोलसेस बोलते हैं, कैप्सूल्स ले सकते हैं। लिक्विड डोसेज फॉर्म्स हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म्स में जैसे एलेक्सिर्स हैं, बहुत सारे साइरप्स हैं, एमल्शंस हैं, मिक्सर्स हैं, तो ये सारे हम ओरल रूट से ले सकते हैं। ओरल रूट के क्या क्या लिमिटेशंस हैं या नुकसान क्या क्या ओरल रूट से, क्या नहीं कर सकते ओरल रूट से? The action is slower in oral route, the action is slower. इमरजेंसी में आप ओरल रूट यूज करें, क्योंकि वो टैबलेट जो भी ओरल रूट से आप लेंगे वो जीआई ट्रैक्ट में पहले उसको सॉल्युबलाइज होना होगा, डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व होने में जैसे एक ग्लास में एक टैबलेट डाल दो, जो नॉर्मल टैबलेट है, पैरासिटामोल टैबलेट डाल दो, तो आधा एक घंटा में डिसॉल्व होगा। अगर फास्ट रिलीजिंग टैबलेट है जैसे डिस्प्रिन है, तो वो 2 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा। और आप टैबलेट खाए, आधा ग्लास पानी पिए, तो वो जैसे आधा ग्लास पानी में टैबलेट रखा हुआ आपके स्टमक में रखा हुआ, अब धीरे धीरे डिसॉल्व होगा। हो सकता है 100% डिसॉल्व भी ना हो, जितना डिसॉल्व उसके बाद तुरंत दम पे खाना खा लिया, उसके बाद वो बाउल के साथ आगे मूव करने लगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। एब्जॉर्प्शन जो है वो ड्रग एब्जॉर्ब वही होगा जो सॉल्युबल होगा, जो डिसॉल्व कर होगा, अनडिसॉल्व एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और अल्टीमेटली कितना परसेंट ड्रग ब्लड में गया उतना ही काम करेगा। हमने अगर 100 मॉलिक्यूल ड्रग कर लिया है, उसमें से ओनली 40 मॉलिक्यूल्स ब्लड में इफेक्टिवली पास किया इन एक्टिव फॉर्म, बहुत सारे उसमें 20 मॉलिक्यूल्स रास्ते में जो है डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, यही मैं बता रहा था जो बीच में डिस्कशन होने लगा, फर्स्ट पास इफेक्ट। अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल हमने, जैसे एक ड्रग मॉलिक्यूल लिया, एक ड्रग लिया जिसमें टैबलेट 500 मिलीग्राम का टैबलेट है, और वो टैबलेट हमने च्यू किया, पहले दांत खाया, च्यू किया, फिर हमारे सलाइवा में ही वो 1-2% डिस्ट्रॉय हो गया, स्टोमक में जाने के बाद एसिड में वो डिस्ट्रॉय हो गया, 40% हो गया, तो बचा 50%। और उसके बाद वहां से एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाएगा? स्टोमक से एब्जॉर्ब होकर के पहले वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं जाएगा, कुछ हमारे म्यूकोसल सेल्स के बैरियर आएंगे, म्यूकोसल या एपिथेलियल सेल्स के बैरियर आएंगे, उसको क्रॉस कर करके 8-10 लेयर क्रॉस करेगा, तब जाकर ब्लड में जाएगा। और ब्लड में जाते जाते मान लो उसका 65% ड्रग मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो गया, 35% पहुंचा। तो हमने दिया 100% और इफेक्टिवली पहुंचा 35%, और ब्लड में भी कुछ एंजाइम्स उसको मिल गया जो 5-10% को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब ओवरऑल 25% ही उसका एक्टिव फॉर्म में बचा, तो उसका 75% ट्रांजिट में, मूवमेंट में, अपने टारगेट तक पहुंचने के पहले डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कोई वैसा ड्रग है, वैसे ड्रग को बोलेंगे उसका फर्स्ट पास इफेक्ट हो गया, फर्स्ट पैसेज या फर्स्ट मूवमेंट में, कि ब्लड में जाने के पहले एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अगर उसका डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको फर्स्ट पास इफेक्ट भी बोलते हैं, या उसको प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन भी बोलते हैं। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के पहले अगर उसका एलिमिनेशन हो जाए या सिग्निफिकेंट अमाउंट उसका डिस्ट्रॉय हो जाए, उसको बोलेंगे प्री सिस्टेमिक एलिमिनेशन भी। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिसको ओरल रूट से इस वजह से नहीं ले पाते, क्योंकि उसका फर्स्ट पास इफेक्ट सिग्निफिकेंट 40-50% लॉस हो जाता है। तो ड्रग कॉस्टली है, बेटर इंजेक्शन से ले लो, इंजेक्शन से लेंगे तो सीधे ब्लड में पहुंचेगा। तो अब क्या है कि ओरल रूट का लिमिटेशन है कि बहुत सारे ड्रग्स का जो है फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाएगा, हो जाता है, जो मतलब मूवमेंट में, और कोई भी कुछ भी खाएंगे हम, वो एब्जॉर्ब होगा तो सबसे पहले बॉडी में कहा जाएगा? Who will answer? अगर कुछ भी हमने खाया और वो एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब होने के बाद वो बॉडी में सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा? Who will answer? पोर्टल सिस्टम से लीवर बॉस्ट है, ठीक है। और कुछ भी खाया पिया तो सबसे पहले लीवर में जाएगा। By which kind of circulation? पोर्टल सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, हाँ, Hepatic पोर्टल circulation. सर्कुलेशन, yes.
तो ये जो पोर्टल एक सिस्टम बना हुआ है कि कुछ भी खाया हम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो भी एब्जॉर्ब हुआ, कोई भी ड्रग खाया, वो सारा के सारा सबसे पहले लीवर में जाएगा और लीवर उसको स्क्रीन करेगा, प्रोसेस करेगा। अगर कोई टॉक्सिक ड्रग है तो उसको डिटॉक्सिफाई करेगा। अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा है तो पहले अपना अगर स्टोर ग्लाइकोजन रिजर्व्स खा लिया तो वो स्टोर करेगा। कहने का मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर में जाएगा। और लीवर एक वेरी हाईली एक्टिव ऑर्गन है। अभी 1-1.5 मिनट में एंड हो जाएगा, फिर कंटिन्यू करेंगे तो ये इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। लिवर जो है वो हाईली एक्टिव ऑर्गन है, काफी एंजाइमेटिक रिएक्शंस वहां होते हैं। तो अब चांसेस है कि ड्रग लीवर से क्रॉस करके उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन में जब जाए तो हो सकता है लीवर भी उसको बहुत सारा डिस्ट्रॉय, डैमेज कर दे, ऑक्सीडाइज कर दे, रिड्यूस कर दे, हाइड्रोलाइज कर दे। तो ये सारा प्रोसेस हो करके जब ब्लड में वो एज इट इज अगर पहुंचता है तभी जाके वो फार्माकोलॉजिकली एक्टिव होगा या काम करेगा। तो ओरल रूट के लिमिटेशंस हैं। ओरल रूट के बहुत सारे लिमिटेशंस हो गए, जो पहले तो उसको फर्स्ट पास इफेक्ट और लीवर्स को क्रॉस करना होगा। फिर ओरल रूट में है कि अगर बहुत बिटर ड्रग है तो बच्चों को पिलाने में मुश्किल पड़ेगी, आप उल्टी कर देंगे या फिर अभी इसको एंड करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं, तब डिस्कशन करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज मिल रही है आपको? Yes. So we were discussing limitations of oral route. Obviously, oral route is one of the most preferred routes, but it has got its own limitations. We cannot use this route in case of emergencies. We cannot, since palatability is a concern, you have to pass the drug via your tongue. Your tongue will taste first. If it is good, the patient will prefer. If it is not very good, the patient will reject it. So palatability becomes one concern. In animals also, if you give to your pet, if it is good in tasting, it will lick and it will take. Otherwise, you have to apply some hook and crook. So based on the palatability, if it is highly irritant, it may induce vomition tendency, which is called nausea, or it may induce vomition also. So in case of very uncooperative or unconscious animals और पेशेंट अगर वो बेहोश है तो ओरल रूट हम यूज नहीं कर सकते देने के लिए। तो ये सारे कुछ लिमिटेशंस हैं। और कुछ एक ड्रग्स हैं जो ओरल रूट से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, और वो ओरल रूट से वही एब्जॉर्ब होगा जो वाटर सॉल्युबल होगा, जो वाटर में जीआई ट्रैक्ट में वाटर में डिजॉल्व होगा। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ओरल रूट से एब्जॉर्ब नहीं होता, उसको हम स्पेशल व्हीकल में फॉर्मुलेट करके इंजेक्शन ही लेने होंगे। और कुछ एक ड्रग्स हैं जो फर्स्ट पास इफेक्ट हो जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस से डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, जैसे पेनिसिलिन जी, तो उनका हम ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कमिंग नेक्स्ट टू द अदर रूट्स, the next route is sublingual route or the buccal route. Sublingual route के कुछ एडवांटेजेस हैं ओरल रूट से, लेकिन कुछ डिसएडवांटेजेस। सर लेकिन पेंटेड जो टैबलेट होता है उसको तो ओरल लेते हैं सर। कौन सा पेंटेड, क्या कॉम्पोजिशन है? पेंटेड टैबलेट होता है सर, पेंटेड 400 mg ऐसा करके कुछ रहता है। कॉम्पोजिशन बात करेंगे, उसका क्या ड्रग का कॉम्पोजिशन है वो देख करके अगले क्लास में बात करेंगे। सर वो पेनिसिलिन का है, पेनिसिलिन उसमें बहुत सारे पेनिसिलिन जो है वो एक बिग क्लास ऑफ ड्रग है। उसमें जो ओरिजिनल ड्रग है, जो ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पेनिसिलियम क्राइसोलिनम से ऑब्टेन होता है, जो नेचुरल एंटीबायोटिक है, दैट इज कॉल्ड पेनिसिलिन जी, वो अनस्टेबल होता है। अब आज के डेट में बहुत सारे सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन ऑब्टेन हो गए, एमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, दे आर एसिड रेसिस्टेंट, उनको हम टैबलेट कैप्सूल में ले सकते हैं। आई वाज टॉकिंग अबाउट पेनिसिलिन जी, उसमें हो सकता है पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन हो, एमॉक्सिसिलिन हो, आप कॉम्पोजिशन देखिएगा उसका, ठीक है? ओके ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अब लोगों ने रिसर्च करके काफी डेवलपमेंट्स हो गया है और ओरली स्टेबल पेनिसिलिन्स भी आ गए हैं, ठीक है? सबलिंगुअल रूट का एक डिसएडवांटेज है कि आपको टंग के नीचे रखना होगा, खा लिया तो सबलिंगुअल नहीं होगा वो। और सबलिंगुअल रूट का एक एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है कि टंग के नीचे रखेंगे तो टंग के नीचे टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, तो टेस्ट अगर वो बिटर भी है तो पता नहीं चलेगा और वहां से डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगा, और वहां से एब्जॉर्ब होगा तो वो लीवर में नहीं जाएगा, डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा।
तो फर्स्ट बाईपास इफेक्ट जो है वो बाईपास हो जाएगा, लीवर बाईपास हो जाएगा, फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं होगा वैसे ड्रग्स के साथ। तो कुछ एक ड्रग्स हैं जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, आइसोप्रेनालिन है, मिथाइल टेस्टोस्टेरोन है, इनके पिल्स जो है सबलिंगुअल पिल्स आते हैं, टंग के नीचे 5 मिनट रखिए, डिजोल्व होकर मेल्ट हो जाएगा, 5 मिनट में अब्जॉर्ब हो जाएगा। बहुत पॉपुलर रूट नहीं है, बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ड्रग्स इस रूट से यूज नहीं होते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू द रेक्टल रूट, ये हाईली अनप्रेफर्ड रूट है। इरिटेंट और अनप्लेजेंट ड्रग्स ही जो सपोजिटरी में स्पेशल कंडीशन में यूज हो सकते हैं, और वैसे पेशेंट जिसमें कि रिकरेंट वोमिशन हो रहा हो, वी मे ट्राई बाय रेक्टल रूट, बट इसकी कितनी एब्जॉर्प्शन होगी रेक्टल रूट से, ये काफी स्लोअर एब्जॉर्प्शन है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और ड्रग रिस्पॉन्स अनप्रेडिक्टेबल है, कितना असर होगा। तो आज के डेट में ये रूट हाईली अनप्रेफर्ड है, पहले कभी यूज करते थे, कभी कभी अभी भी यूज करते हैं इमरजेंसी कंडीशंस। क्यूटेनियस रूट जो है वो अगर हम स्किन पे अप्लाई करें हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को, और कुछ तो वो कुछ एब्जॉर्ब हो सकता है, जैसे कुछ ऑइंटमेंट्स हैं। इनहेलेशन रूट्स में ऑब्वियसली कुछ एनेस्थेटिक्स हैं, गैसेस एनेस्थेटिक्स हैं जो इनहेलेशन रूट से यूज करते हैं। एस्थमेटिक पेशेंट्स में कुछ इनहेलर्स यूज करते हैं। तो इनहेलेशनल रूट से सीधे लंग्स में जाएगा और वेरी फास्ट एब्जॉर्प्शन होगा उसका। नेजल रूट है, और नेजल रूट में अगर हम जैसे बहुत सारे नेबुलाइजर्स हैं जो एक बार हल्का इनहेल करें, नेयर्स तक रहे, वहां से एब्जॉर्ब हो। बहुत पॉपुलर रूट नहीं है। मोस्ट पॉपुलर रूट्स आर दी, अपार्ट फ्रॉम दी, सबसे पॉपुलर रूट था आपको ओरल या एंटरल, उसके बाद मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूट है पेरेंटल रूट्स। पेरेंटल रूट्स कहने का मतलब है कि ड्रग विल गो डायरेक्टली इनटू द टिश्यू, बॉडी टिश्यू, फ्लूइड और द ब्लड। और अगर डायरेक्टली ब्लड में जाता है तो उसको बोलेंगे इंट्रावेनस। और इसके अलावा अगर बॉडी टिश्यूज में, जैसे अगर मसल्स के टिश्यूज में जाता है तो उसको इंट्रामस्कुलर बोलेंगे, सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाता है तो सबक्यूटेनियस रूट बोलेंगे, इंट्रापेरिटोनियल फ्लूइड में जाता है तो उसको इंट्रापेरिटोनियल रूट बोलेंगे। इस तरीके से अलग अलग पेरेंटल रूट्स हैं। और ऑब्वियसली पेरेंटल रूट का जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो फास्ट है। लीवर ऑलवेज बाईपास हो जाएगा, तो कोई फास्ट पास इफेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत बड़ा पेरेंटल रूट का डिसएडवांटेज है, कुछ भी इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं। जो भी इंजेक्शन हम पेरेंटल रूट से दे रहे हैं वो स्टेरलाइज्ड होना चाहिए। तो स्टेरलाइज्ड होने की वजह से, और वो स्टेरलाइज्ड पैक्ड होने की वजह से महंगे हो जाते हैं, कॉस्ट ज्यादा होता है। खाने का तो हम कुछ भी लेके खा सकते हैं, लेकिन इंजेक्शन कुछ भी नहीं लगा सकते। फिर कमिंग फर्स्ट रूट इज सबक्यूटेनियस रूट। व्हाट इज सबक्यूटेनियस रूट के क्या है? सबक्यूटेनियस रूट कहाँ देंगे? एक इमेज है, मैं दिखाता हूँ। यस, वो सी दिस इमेज। एक स्किन का एक ये फ्लैप है, एक स्किन का वो सेक्शन है, और स्किन के सेक्शन में दिस अपर लेयर इज द एपिडर्मिस। उसके बाद फिर ये डर्मिस पार्ट है, उसके नीचे जो है वो यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है, दिस पार्ट इज सबक्यूटेनियस टिश्यू। स्किन के जस्ट नीचे जो है, दिस पोर्शन इज सबक्यूटेनियस फैट और सबक्यूटेनियस टिश्यू। तो अगर सबक्यूटेनियस देना हो तो स्किन के नीचे इंजेक्ट करके यहाँ पे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ वॉल्यूम है, 5-10 ml तक हम इंजेक्ट कर सकते हैं। और सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर क्या है कि सबक्यूटेनियस स्पेस के नीचे जो मसल्स हैं, मसल्स में हम इंजेक्ट करेंगे तो वो इंट्रामस्कुलर होगा। अब वापस देखते हैं। Now this subcutaneous route, the drug is deposited into the loose subcutaneous tissue, connective tissue, which is richly supplied by nerves. Subcutaneous space में, subcutaneous tissue में nerve supply काफी ज्यादा होता है, rich amount में होता है। तो अगर कोई irritant drug दे दे जो highly bitter हो, irritant हो, तो काफी पेन फीलिंग होगी, क्योंकि वहां नर्व सप्लाई जाता है। तो इसलिए जो है इरिटेंट ड्रग्स जो है वो दे आर नॉट इंजेक्टेड बाय सबक्यूटेनियस रूट। सबक्यूटेनियस रूट से इरिटेंट ड्रग्स को हम नहीं देते हैं, ठीक है। और सबक्यूटेनियस टिश्यू की एक और खासियत है, वहां ब्लड सप्लाई कम होता है। तो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से क्या है, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा। तो कुछ वैसे ड्रग्स हैं जिसका हम चाहते हैं कि एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे हो, जैसे वैक्सीन्स में क्या है,
वैक्सीन में जो है वो जो एंटीजेंस हैं हम चाहते हैं वो 1 वीक 10 डेज 15 डेज तक धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो और उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी टाइटर बने। अगर वैक्सीन को हम इंट्रावेनस दे देंगे तो सारा का सारा एक दिन में कितना एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये सबक्यूटेनियस रूट मोस्ट प्रेफर्ड। या किसी का अगर रिपोजिटरी या डिपॉट प्रिपरेशन देना हो, रिपोजिटरी मतलब जो वहां जाके जमा हो जाए और धीरे धीरे रिलीज हो, या वहां जाके डिपॉजिट हो जाए, तो उसको डिपॉट प्रिपरेशन बोलते हैं। तो रिपोजिटरी या डिपॉट प्रिपरेशन के लिए भी सबक्यूटेनियस रूट प्रेफर्ड रूट है। सिर्फ हमको ध्यान रखना है इरिटेंट ड्रग नहीं होना चाहिए, नहीं तो पेशेंट जो है बहुत गाली देगा क्योंकि उसको पेन होने लगेगी। नेक्स्ट रूट इज इंट्रामस्कुलर रूट। इंट्रामस्कुलर रूट में क्या है, इसमें हम मसल्स में इंजेक्ट करेंगे जैसा डायग्राम में दिखाया था आपको। और मसल्स में जो है वो नर्व सप्लाई सबक्यूटेनियस स्पेस के कंपैरिजन में कम होता है, तो वहां नर्व सप्लाई कम होगा लेकिन ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा। वो मोर वैस्कुलर टिश्यू मसल्स कंपेयर्ड टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो वहां से एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा, आपका ड्रग रिस्पॉन्स फास्ट होगा। तो ये मोस्ट रूटीन रूट है। अगर कोई भी पेरेंटल रूट इंजेक्शन लेना हो तो आपके बहुत सारे प्रेफर्ड साइट्स हैं, जैसे आपको डेल्टॉइड मसल है। डेल्टॉइड मसल कहाँ पे होगा? डेल्टॉइड मसल आपके जो ये ट्राइसेप्स है, ये जो डेल्टॉइड मसल है। उसके बाद फिर आपको जो फिर ट्राइसेप्स है, पीछे ट्राइसेप्स है, फिर आपके बैक में ग्लूटियस है। फिर तो ये सारे जो रिच मसल्स हैं जिनकी वॉल्यूम है, तो वहां हम इंजेक्ट कर सकते हैं। और क्या हमें प्रिकॉशन लेना होगा? डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। मसल्स में जब भी देंगे डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे। सुपरफिशियल देंगे तो बाहर की ओर बैक फ्लो आकर के वो ड्रग निकल सकता है, तो मसल्स में डिपॉजिटेड है ताकि वहां से एब्जॉर्ब हो। एक और प्रिकॉशन लेंगे, मसल्स में चूंकि रिच ब्लड सप्लाई रिच है, तो आप इंजेक्ट करोगे तो अगर कोई बीच में ब्लड वेसल पंचर हो गया और उसमें आपने डाल दिया तो वो इंट्रा मस्कुलर ना हो कि इंट्रावेनस हो जाएगा। तो एज ए थंब रूल, इंजेक्ट करने के पहले, जब पुश करने के पहले हम सक करते हैं कि अगर ब्लड वेसल में गया तो ब्लड आने लगेगा, तो फिर से एडजस्ट करेंगे। तो आप एक्सपर्ट कंपाउंडर को देखोगे कि जो इंट्रामस्कुलर रूट से जो ड्रग दे रहा है, तो पियर्स किया नीडल और उसके बाद पुश करने के पहले सक करता है माइल और उसके बाद पुश करता है। कुछ नहीं आ रहा है यानी कि वो सही गया, जगह पे गया। तो डीप इंजेक्शन इसमें इंट्रामस्कुलर रूट में जरूरत है। और इसमें भी हम डिपॉट प्रिपरेशंस दे सकते हैं। मसल्स में भी काफी वॉल्यूम है, वो भी सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ ड्रग को एक्युमुलेट कर सकता है। वैक्सीन को आज के डेट में हम इंट्रामस्कुलर रूट से भी देते हैं क्योंकि सबक्यूटेनियस रूट के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए। इंट्रामस्कुलर रूट मोस्ट प्रेफर्ड, बहुत ही ट्रेंड लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये डायग्राम हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंट्रामस्कुलर रूट में ड्रग कहाँ पे जा रहा है, तो मसल्स पे जा रहा है, और सबक्यूटेनियस रूट में सबक्यूटेनियस टिश्यू में जा रहा है। दोनों का एक ग्राफिकल डिपिक्शन है कि अगर हम इंट्रावेनस रूट में दें तो इंट्रावेनस रूट में ड्रग मान लो हमें 5 या 10 सेकेंड्स में हम 15 ml ड्रग या 10 ml ड्रग को हम इंजेक्ट करते हैं ब्लड वेसल में। आप 15 सेकंड्स के बाद वो जो ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में है वो मैक्सिमम हो जाएगी, और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो वहां से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और ब्लड कॉन्सेंट्रेशन फॉल होने लगेगा। तो इसका ग्राफ इस टाइप से आता है। हम फार्माकोकाइनेटिक्स में डिटेल में ग्राफ को समझाएंगे। तो आईवी इंट्रावेनस रूट से अगर दें तो इसका ग्राफ नॉर्मली 2 पैटर्न में होता है, एक फर्स्ट ऐसे, एक ऐसे, इस टाइप से। लेकिन अगर सबक्यूटेनियस रूट से दें तो सबक्यूटेनियस रूट में धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, और वो ड्रग इंजेक्ट करेंगे तो एब्जॉर्ब होते मैक्सिमम प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन आने में कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद ही है। तो दोनों के जो ग्राफ पैटर्न में डिफरेंस है, इनके बारे में हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, आप कंफ्यूज ना हो। इंट्रावेनस रूट जो है वो इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से कुछ केसेस में एडवांटेजियस है क्योंकि हम ड्रग को डायरेक्टली ब्लड में दे रहे हैं। डायरेक्टली ब्लड में देने में कोई एब्जॉर्प्शन का तो इशू है नहीं। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन? एब्जॉर्प्शन इज इन फैक्ट मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन।
साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर मसल है, वहां से ब्लड में जाने की प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इंट्रावेनस रूट में दिया तो काहे का मूवमेंट, सीधा सीधा तो ब्लड में गया, तो इंट्रावेनस रूट में कोई एब्जॉर्प्शन का स्कोप नहीं है। क्यों? क्योंकि 100% ऑफ द ड्रग इज बीइंग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और ये हम इंजेक्ट कहाँ करते हैं? आर्टरी में करते हैं कि वेन में करते हैं? कहाँ करेंगे शालिनी? वेन में से। वेन में, जो सुपरफिशियल वेन से जो दिख रहे हैं हमें ऊपर से। अब डीप सी आर्टरी डीप सीटेड है तो उसमें इंजेक्शन दे नहीं सकते, नॉर्मली देने में प्रॉब्लम आएगी। तो और वेन में देंगे तो सारा ब्लड लौट के हार्ट में जा रहा है और उसके बाद पंप होगा तो पूरे एक इन वन वेन टू ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बहुत सारे जो सुपरफिशियल वेन्स है वहां पे इनका इंजेक्शन कर रहे हैं। और इमरजेंसी में हम ट्रीटमेंट में हम लगा सकते हैं। हमें थोड़ी प्रिकॉशन रखनी है, क्योंकि इसमें साइड इफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि जब भी ड्रग हम इंजेक्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारा ब्लड सर्कुलेशन में जो सेंट्रल ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वो ड्रग जा रहा है। और हमारा बॉडी में जो ब्लड है वो एक सिस्टमिक एक डिफाइंड फैशन में फ्लो करता है। बीच में ब्लड वेसल्स के बीच में जो है वो सेल्स हैं, चारों तरफ प्लाज्मा या फ्लूइड कंपोनेंट है। तो आपको जब भी देना हो तो स्लो, क्योंकि आप आउटसाइड से कुछ एक्सटर्नल फ्लूइड ऐड कर रहे हो, तो इंटरनल और वो सारा का सारा फ्लूइड लौट करके हार्ट को जा रहा है। तो बहुत ज्यादा अगर स्पीड में, जैसे आईवी ड्रिप है, आईवी ड्रिप का स्पीड अगर पेशेंट खुद से बढ़ा लेता है तो आधे एक घंटे में उसे कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है। हार्ट को एक ज्यादा स्पीड में वॉल्यूम मिलने लगेगा, हार्ट को इस प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर वॉल्यूम ऐड कर रहे हो तो आपको केयर लेना होगा। केयर लेना होगा कि स्लो एडमिनिस्ट्रेशन हो। वो ड्रग जो है सारे पेरेंटल रूट में जो भी ड्रग देंगे स्टेरिलिटी का मेंटेन करेंगे, नीडल इंजेक्शंस, योर सरफेस ऑफ एप्लीकेशन, एवरीथिंग शुड बी स्टरलाइज्ड। और एक एडवांटेज भी है इसमें, हम हाईली इरिटेंट ड्रग को भी इंजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड वेसल का जो अंदर का जो इंटाइमा ऑफ द ब्लड वेसल है उसमें नर्व सप्लाई नहीं होता है, तो आपको टेस्ट फील नहीं होगा, उसका जो है बिटरनेस या इरिटेंट टेस्ट फील नहीं होगा। लेकिन आपको प्रिकॉशन लेना होगा, स्ट्रिक्टली ब्लड वेसल में ही रह नीडल, बाहर निकल जाएगा तो इन्फ्लेमेशन कर देगा, वो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या ये सारे प्रॉब्लम होंगे। तो फॉर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपर्ट टेक्नीशियन शुड बी देयर, एक्सपर्ट कंपाउंडर या डॉक्टर ही को देना चाहिए, नहीं तो 5-6 बार प्रिक करेगा इधर उधर, वो प्रॉब्लम आएगी। फिर इंट्रावेनस रूट में और क्या है, जो भी आप इंट्रावेनस रूट में कोई सॉलिड डोसेज फॉर्म नहीं दे सकते हो, सिर्फ आप लिक्विड दे सकते हैं। और वही ड्रग जो सिर्फ एक्वस में वाटर सॉल्युबल हो, एक्वस सॉल्युबिलिटी होना चाहिए, ऑयली सॉल्वेंट आदि वगैरह नहीं देंगे, वो जाकर के फैट इम्बोलाई फॉर्म करेगा। जो ब्लड में इजिली मिक्स हो जाए उसी को देंगे। और एक टर्म है बायो अवेलेबिलिटी, ये थोड़े दिन बाद हम आपको डिफाइन करेंगे। व्हाट इज दिस बायो अवेलेबिलिटी? इट इज द परसेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग, ऑफ द एडमिनिस्टर्ड ड्रग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। कोई ड्रग अगर मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स हमने टैबलेट खाया और वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर के ब्लड में गया 50 मॉलिक्यूल्स, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी हो जाएगी 50%। तो अगर इंट्रावेनस रूट से देंगे 100 मॉलिक्यूल्स को, तो उसका ऑलवेज, किसी ड्रग को अगर इंट्रावेनस रूट से देंगे तो उसका बायोअवेलेबिलिटी ऑलवेज 100% होता है। तो एक फायदा है कि बायोअवेलेबिलिटी जितना ज्यादा होगा, इसी पे ड्रग का एक्शन या उसका इफेक्ट डिपेंड करेगा। तो ड्रग का इफेक्ट या एक्शन इंट्रावेनस रूट से मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है और ये मोस्ट रिस्की रूट है। यू हैव टू टेक केयर लॉट ऑफ प्रिकॉशंस। थोड़ा इधर उधर किया तो प्रॉब्लम होगा। इसके एडवांटेजेस बहुत हैं, लेकिन यू हैव टू टेक एवरी केयर। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम अदर माइनर रूट्स आल्सो। इंट्राडर्मल रूट है, कुछ ड्रग टेस्टिंग आदि वगैरह में, जैसे कि मॉन्टॉक्स टेस्ट अगर करना हो आपको ट्यूबरकुलोसिस का या दूसरे किसी ड्रग का एलर्जी का टेस्ट करना हो, तो स्किन में डायरेक्टली इनटू द स्किन, डर्मिस तक हम एपिडर्मिस क्रॉस करके डर्मिस लेयर में इंजेक्ट करते हैं। वेरी स्मॉल ट्यूबरकुलिन नीडल से हम उसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो इंट्राडर्मल रूट है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत प्रेफर्ड यूज नहीं होता है। कुछ एक ड्रग टेस्टिंग या सेंसिटिविटी टेस्टिंग या बीसीजी वैक्सीन आदि वगैरह, ये सारे इस रूट से अप्लाई होते हैं।
इसके अलावा एक इंट्रापेरिटोनियल रूट है। अब क्लिनिक्स में इंट्रापेरिटोनियल रूट कभी कभी यूज होगा। अगर वैसा कोई पेशेंट है जो हाईली डिहाइड्रेटेड है, उसका ब्लड वेसल्स भी कोलैप्स कर गया हो, आप इंट्रावेनस में उसका ब्लड वेसल्स को अगर फील ना कर सके और आपको तुरंत लॉट ऑफ वॉल्यूम अगर ये करना हो, अगर 200, 300, 500, 1 ml हाफ लीटर तक अगर आपको इंजेक्ट करना हो, तो अगर और इंट्रावेनस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो रहा है, in that case what you will do, you will go for intraperitoneal route. इंट्रापेरिटोनियल स्पेस में काफी आधा लीटर तक वॉल्यूम एडजस्ट हो जाएगा, तो 100 ml 5-7 जगह पे हम इन्फ्यूज करेंगे। बट यू हैव टू टेक केयर कि ये रिस्की रूट है। इंट्रापेरिटोनियल कहाँ पे देते हैं? लंबर, सब लंबर फोसा में जाकर के स्किन को क्रॉस करके पेरिटोनियम को क्रॉस करके देते हैं। अब इतना नीडल नहीं देते कि वो स्टोमक कैविटी में चला जाए। दिस केयर हैज टू बी टेकन। और अभी तो इन रूट्स का आपको डेफिनेशन और एडवांटेज डिसएडवांटेज बताया जा रहा है। जब आप क्लिनिक्स में एंटर करेंगे तो इन रूट्स को आपको एडमिनिस्टर करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ और क्लासेस अगर मिलेंगे तो मैं इनके कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, या कैंपस खुलेगा तो रैट आदिपुरा में दिखा सकते हैं ये कैसे रूट हम यूज करें। इसके अलावा कुछ माइनर रूट्स हैं, जैसे इंट्राथोरैसिक रूट है, या इंट्राथोरैसिक रूट है कि कभी कभी इंट्राथोरैसिक एंड इंट्राकार्डियल इंजेक्शंस भी देते हैं कि कोई फेलिंग हार्ट है, पेशेंट अब नहीं बचने वाला, डायरेक्टली हार्ट में इंजेक्शन देना हो तो इंट्राकार्डिक इंजेक्शंस भी देते हैं, बट ये स्पेशल केसेस में यूज होते हैं, रूटीन रूट्स नहीं। इसके अलावा इंट्राथीकल इंजेक्शंस भी हैं। इंट्राथीकल इंजेक्शंस कहने का मतलब कि अगर जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में जो आपके मेनिंजेस हैं, तो ड्यूरा मैटर को क्रॉस करके जस्ट नीचे, अगर जैसे बहुत सारे एनेस्थीसिया में एपिड्यूरल इंजेक्शंस देते हैं, प्रेगनेंसी के केस में बहुत सारा अगर सिजेरियन सेक्शन करना हो तो पीठ में इंजेक्शंस देते हैं वहां पे जो वर्टिब्रल कॉलम में, तो वो एपिड्यूरल या इंट्राथीकल इंजेक्शंस है। वो एग्जैक्टली कहाँ पे जा रहा है? जो मेनिंजेस है, बाहर में जो ड्यूरा मैटर है उसके नीचे जो है पाया मैटर, ड्यूरा मैटर के जस्ट नीचे वो सब एरेक्टोनाइड स्पेस में वो फ्लूइड डाल देते हैं और डायरेक्टली वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक्ट करेगा। फिर इसके अलावा इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शंस भी हो सकते हैं कि आर्टरीज में भी डायरेक्ट अगर देने की जरूरत हो, तो ये सारे कुछ स्पेशल कंडीशंस में यूज होते हैं। थोड़ा सा और इनको पढ़ें, जो कि क्लास के लिमिटेशंस हैं। अब अगर ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन देखें, किस रूट में सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है? ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन 100% है इंट्रावेनस रूट में, नेक्स्ट है इनहेलेशनल रूट में, फॉलोड बाय इंट्रामस्कुलर, फॉलोड बाय इंट्रापेरिटोनियल, फॉलोड बाय सबक्यूटेनियस, और सबसे कम एब्जॉर्प्शन हो रहा है ओरल रूट। ओरल रूट से थोड़ा सा ही ज्यादा सबक्यूटेनियस रूट में होता है। तो सबक्यूटेनियस रूट को इनफैक्ट डिपॉट प्रिपरेशंस के लिए यूज करते हैं या वैक्सीन के लिए। यहाँ पे आज का क्लास कंक्लूड करेंगे। किन्हीं को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? एक क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्लास भी है। हाँ, नेक्स्ट क्लास कल का होगा, क्या नहीं करना है तो बताओ, आई विल बी हैप्पी। किसी को कुछ पूछना है या आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है? चलिए कल के क्लास में मिलते हैं, फिर कल के बाद छुट्टी मनाएंगे। नेक्स्ट क्लास, हाँ जी, कल की रूटीन लगी हुई है ना, तो कल कहने का ये मतलब अभी क्लास भी है। हाँ, तो अभी क्लोज करते हैं। जो पूछना हो कल के क्लास में पूछेगा या चैट में क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है?